टॉपिक इज हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिनोमियल जो हमने स्टार्ट किया था। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 हमने स्टार्ट किया आज। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So here it's asking us that we need to find the zeros of the quadratic polynomial. So I already explained quadratic polynomial. Quadratic polynomial is a polynomial which has highest degree, that is 2. So that's why it is here quadratic polynomial. So we have to verify the relationship between the zeros. तो zeros क्या होते हैं? zeros का मतलब है बेटा, जीरो से हमें x की वैल्यू पता चलता है। x की वैल्यू हमें these zeros is actually to find the value of the x. तो यहाँ पे आप x देख सकते हो, the value of x is unknown है. So by the help of zeros, actually the zeros is to find the value of the x. And the coefficients are, for example here we have the coefficient that is x का कोफिशिएंट है 2 एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स इट इज 1. ऑलराइट, सो just we will get started with this question. The question is x square minus 2x minus 8. So we need to find the zeros first and then we will verify the relationship between zeros and the coefficients. Alright, so हम ये zeros कैसे find करें? There are few methods by which we can find the zeros of the polynomial, but one of the method that is very simple and that is common and which is common, that is splitting the middle term. All right, that is splitting the middle term. Now this splitting the middle term is actually a method which helps us to find the zeros of the quadratic polynomial. All right, the splitting of the middle term, it has some rules. Okay, we have to follow those rules in order to find the zeros of this quadratic polynomial. Or what are the rules? Now see, here we have x square minus 2x minus 8. All right, so sum we have to split the middle term. So middle term is minus 2x. So it's important here to note down that we should consider the sign also, because the sign plays an important role. It plays a vital role here. So the sum is, we'll write it down here, sum is minus 2x. So this is the term, this minus 2x, we have to split down this, and we have to split this down in the way that the sum should be minus 2x. We have to split into two numbers, and when we just if we subtract those two numbers or if we add those two numbers, the sum should be minus 2x, and the product, we have to split this number, this term, that is minus 2x, the sum should be minus, and the product, मतलब वो जो दो नंबर जो भी होंगे उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, that product should be, प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है that is 1, ये कोफिशिएंट जो भी होता है एक्स स्क्वायर का, एंड दिस कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस. तो इनका प्रोडक्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 8. सो प्रोडक्ट इज 8. तो रूल कहता है सम शुड बी, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, द सम शुड बी माइनस 2x एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स शुड बी, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उन दो नंबर्स का, दैट शुड बी 8. तो ये 8 कहाँ से आया? जब भी हम स्प्लिट करेंगे, व्हेन वी स्प्लिट द मिडल टर्म, वी शुड टेक दिस in consideration that the coefficient of x square and the constant term, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास आएगा वो प्रोडक्ट आना चाहिए उन दो नंबर्स का जो हम यहाँ पे इस नंबर को स्प्लिट करके करेंगे. नाउ आई विल जस्ट शो यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव x square. Now I have to split this. Okay, the product is 8, so this will get splitted. 8 product है, we can just write down here minus 4x plus 2x minus 8. Now have a look. Minus 4x plus 2x. Minus plus minus 4x minus 2x, that is 2x. 2x. Minus 4x plus 2x. The answer will be minus 2x. How? Because minus plus minus
4x minus 2x, that's 2x, and the sign will be जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन रहता है. द बिगर नंबर इज माइनस 4x, सो इसी का साइन रहेगा, सो माइनस 2x. तो यहाँ पे भी माइनस 2x था. नाउ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8. तो यही मैंने इधर प्रोडक्ट लिखा था, पहले 8 आना चाहिए प्रोडक्ट. सो दिस इज द वे वी स्प्लिट द मिडल टर्म. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज then we have to just make pairs. तो ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया. now we have to just कोई इनमें से कोई कॉमन होगा तो we have to just कॉमन यहाँ पे निकालना होगा. हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है, तो x बाहर आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 4. करेक्ट, x माइनस 4, x बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 4. एंड हेयर ओके, यहाँ पे क्या आएगा बाहर, यहाँ पे आएगा प्लस 2, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4. तो एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी सेम, this pair should be same, x minus 4 exponent 4. see x मैंने कॉमन निकाला, कॉमन का मतलब x यहाँ पे भी कॉमन, मतलब which exactly multiplies this and also this. तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो मैंने x बाहर निकाला, तो x माइनस 4 x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 हो गया 4x और साइन के साथ माइनस. ओके, नाउ हेयर 2, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है एंड 2 4 8 यहाँ पे भी है, बिकॉज 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स, दिस ऑल्सो एंड दिस. ओके, 2 बाहर आया, प्लस उसका साइन है, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स होता है 2x, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 होता है 8 और माइनस 8 हो गया बराबर. नाउ वी विल राइट डाउन x प्लस 2 दिस एंड दिस, और ये जो पेयर है इसमें से एक ही हम लिखेंगे x माइनस 4. तो ये सारा इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोज हम फाइंड करें. करेक्ट, नाउ हम लिखेंगे ईदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 उधर जाएगा, ये बनेगा 4. नाउ वी हैव जस्ट we got the zeros of this quadratic polynomial. Now the important part, that is we have to just verify the relationship between the zeros and the coefficients. So we have, for that हमारे पास एक formula है, we just sum of zeros, हम लिखते हैं sum of zeros, दिस इज द रिलेशनशिप, वो होता है बराबर सम ऑफ जीरोज, ये एक है, दूसरा सम का मतलब इनको प्लस करना है, माइनस 2 प्लस 4, द आंसर विल बी 2. ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है इसको हम लिखते हैं, दूसरा ये होता है ऐसे अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, वो होता है बराबर माइनस बी डिवाइड बाई ए. बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, और इसको लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वो क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -2. ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, एक तो फॉर्मूला का माइनस और -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. द फाइनल आंसर विल कम आउट 2. सो इट शुड बी सेम, दिस इज द रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस था 2 एंड दिस व्हेन वी जस्ट हमने यहाँ पे वेरीफाई किया विद द कोफिशिएंट्स और जीरोस को वेरीफाई किया तो ये 2 आ गया. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट वे, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ द सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये 2 जीरोस है, दैट इज -2 into 4. सो द आंसर विल कम आउट, दैट इज -8. नाउ वी हैव टू वेरीफाई इट. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी डिवाइड बाई ए. सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x square. As I already told you that a is coefficient of x square and c is the constant. B was coefficient of x. So okay, constant term is, that is here again, that is -8 divided by, and coefficient of x square is 1. So 1. So the final answer will come out, that is -8. So -8. So this is the verification so of zeros and the coefficients. So that means we got the right answer, that is
यहाँ पे आया सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूले से वेरीफाई किया वी गॉट द 2 एंड हेयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -8 और यहाँ पे भी -8. सो दिस वाज द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स. ऐसी वीडियोस आते रहेंगे. थैंक यू सो मच.